Okay, good evening, students. Next chapter is spreadsheet, chapter 4. So, in this chapter, we understand what is Library Office Calc. Okay, so first we understand what is spreadsheet. So, spreadsheet is a application or program to store your data in uh, sheet form or in rows and column form. Okay, so you can store your data, you can analyze your data using a spreadsheet program. So just like Excel, library office calc is also a spreadsheet program where you can store your data and you can analyze, you can compute. Okay, so a spreadsheet allows you to effectively analyze and manage your data. Calc is also a good application to use to create spreadsheets for inventory, timesheets, and grade books. So you can use spreadsheet for your uh, different purpose, like to make inventory, to make timetable, or to uh, store, to make grades or results. Okay, so like Excel, you can enter data in calc spreadsheet and also manipulate, add, subtract, multiply, divide, average. So you can also perform mathematical operations using formulas. So there are number of inbuilt formulas. You can apply those formulas in spreadsheet, or you can add, delete, subtract. You can perform any mathematical logical operations. Okay, so lots of functions are given. You can create databases also. So when you open a calc spreadsheet, it looks like this. इसमें देखिए, सो टॉप में दैट इज़ टाइटल बार, उसके नीचे है मीनू बार फ्रॉम वेयर यू कैन चूज डिफरेंट ऑपरेशन ऑप्शंस. Below that you can see standard toolbar, or this is the shortcut for doing anything on your sheet. Okay, and formatting toolbar is given where you can change font, you can bold it, you can make change size. Okay, and formula bar is given where you can type formulas, and you can apply formulas in your sheet data. Columns A to A, B, C, D, E, F, G, these are the columns, vertical columns. So you can access column, you can manipulate columns, calculate on columns. On left side, row headers are given 1 2 3 4 5 6. So these represent rows. So 1 first row, 2 second row, 3 third row. So these are the rows. And A1, column name A and row name 1. A1 is a cell. Okay, active cell we say, where our cursor is pointing is called active cell. तो ये एक्टिव सेल जिसमें हम हमारा डेटा को एंटर कर सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ एंट्री या एक्टिविटी कर सकते हैं. सो जो सिलेक्टेड सेल है उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल. सो इस सेल का जो नाम है वो क्या है, A1. ओके, अगर इसी के पास में B1 है, उसी के पास में C1 है, तो फर्स्ट रो के A1 B1 C1 C2 C3 लाइक दिस. और नेक्स्ट रो में जाएंगे तो A2 A3 A4. तो फर्स्ट वी राइट कॉलम नेम, देन रो नेम. ओके, so this way you can identify every cell in your sheet, spreadsheet. Okay,
सो इसके नीचे शीट टैब्स दिए हुए हैं। यू कैन ओपन मल्टीपल शीट्स इन वन डॉक्यूमेंट, है ना। तो ज़रूरी नहीं एक ही शीट हो, मल्टीपल शीट भी आप ऐड कर सकते हो शीट टैब में जाकर। स्टेटस बार, वहाँ पे आपको क्या क्या शीट में काउंट कितना हुआ है, सम कितना है, जूम करना है। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ द elements of spreadsheets, different menu bar, status, toolbar, formula bar. So using calc spreadsheet, you can do many tasks for your office work, for any company work. Okay, डेटा एंट्री, है ना, डेटा एंट्री कर सकते हो, डिफरेंट शीट उसमें क्रिएट कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आपको रिज़ल्ट बनाना है तो रिज़ल्ट बना सकते हो। कैलकुलेशंस, है ना, आपको अगर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, कुछ भी मैथमेटिकल फार्मूला इक्वेशन सॉल्व करनी है, यू कैन यूज़ स्प्रेडशीट। व्हाट इफ कैलकुलेशन, है ना, कंडीशन बेस्ड कैलकुलेशंस करने हैं कि ये कंडीशन ट्रू हुई तो व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, और अगर फॉल्स होती है तो कंडीशन बेस्ड व्हाट इफ कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो। ऑटो फिल कर सकते हो, है ना, बहुत लंबे डेटा है, आपको सेम काइंड ऑफ डेटा करना है, तो ऑटो फिल ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, डेटा एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो यूजिंग एक्सेल शीट आप डेटा को चार्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं। तो रो कॉलम के फॉर्म में चार्ट्स हैं, पाई चार्ट है। ओके, तो उसकी हेल्प से एनालिसिस करके कुछ भी डिसीजन या कंक्लूजन निकाल सकते हो। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। So we start with first sheet, कैल्क। तो कैल्क शीट में आपको देख रहे हो A1 हाईलाइटेड है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेल। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ भी डॉक्यूमेंट, या जैसे आपको अरेंजमेंट चाहिए, हेडिंग्स बीच में डालना है, कॉलम्स कैसे डालना है, कॉलम हेडिंग। ओके, तो ये उसका पूरा एलिमेंट्स हैं। ये साइड बार है, इसमें अभी आपको टूल्स मिलेंगे, कैरेक्टर से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टाइल्स, नंबर फॉर्मेट यू कैन डू, अलाइनमेंट यू कैन डू, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो साइड बार में भी जाके आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो नया स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन आइकन तो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। और भी नया चाहिए आपको स्प्रेडशीट, तो फाइल न्यू में जाके स्प्रेडशीट कंट्रोल एन, तो आपको एक नया स्प्रेडशीट फाइल ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक अभी एक ओपन है। ओके, और ये जो है ये है हमारा एक्टिव सेल। तो जहाँ पे अभी हमारा सिलेक्शन है, कर्सर है, तो येलो वाला जो सेल दिख रहा है दैट इज़ आवर एक्टिव सेल। तो किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो वो एक्टिव सेल हो जाएगा, मीन्स वेयर यू कैन एंटर योर डेटा और यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट किया है, तो जितना भी रेड कलर में है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके मल्टीपल सेल्स ड्रैग करना है आपको, लेफ़्ट क्लिक करके माउस को, तो मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट हो जाए। तो पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करने के बाद में माउस को प्रेस करना है, लेफ़्ट बटन, और ड्रैग करना है। उसके बाद में
तो मल्टीपल सेल सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा। देन सिंगल सेल, तो जो अभी एक्टिव सेल बताइए, एक सिंगल सेल पे क्लिक करोगे, ओके। तो येलो इज़ सिंगल सेल और रेड वाले जो है मल्टीपल, है ना। सिलेक्ट करके आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा हो 13 to 21, तो ये कॉलम वाइज सिलेक्शन है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि हम कॉलम में मल्टीपल सेल्स आपको सिलेक्ट करना है, तो ड्रैग करना है आपको स्टार्ट सेल से एंडिंग सेल तक। हॉरिजेंटल भी आप कर सकते हो और वर्टिकल हॉरिजेंटल भी कर सकते हो, सिंगल सेल भी कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेफरेंसिंग। तो सेल रेफरेंसिंग इज जस्ट हाउ यू कैन रेफरेंस सेल और मल्टीपल सेल्स, है ना। एक में अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है तो बाकी के सेल्स को रेफ़र कर सकते हो आप, उनमें फार्मूला अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सेल रेफरेंसिंग की 3 काइंड्स की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। फर्स्ट वन इज़ रिलेटिव। इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, 13 18.5 25 45 ये आपका डेटा है ना। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं B8 सेल को C8 सेल से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमेशा आपको इक्वल लगा के स्टार्ट करना है, तो इक्वल B8 इंटू C8, है ना। तो वो सेल पे आप B8 पे क्लिक करेंगे तो B8 नाम यहाँ पे आ जाएगा, C8 पे क्लिक करोगे तो C8 आ जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करोगे फार्मूला लगाने के बाद में, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 13। तो एक सेल में हमारा अप्लाई हो गया है 1 इंटू 13 कितना हुआ 13। तो अब बाकी वाले सेल्स में हमको फिर से फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कोने में जो लेफ़्ट सेल का जो राइट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे आपको कर्सर ले जाना है, और वहाँ पे आपको एक क्रॉस प्लस का साइन दिखेगा, वो उसको फिर लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है और आपको नीचे ड्रैग करना है। तो बाकी जो सेल्स हैं उनमें रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंड दैट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो एक बार फार्मूला लगा दिया तो बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बाद में वहाँ पे कर्सर से लेफ़्ट बॉटम में एक प्लस साइन आएगा, उससे हम ड्रैग करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो बाकी सेल्स का रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो 2 इंटू 18.5 का 37, 3 इंटू 25 का 75, 4 इंटू 45 का 180, है ना। तो एक ही बार आपको फार्मूला लिखना है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कुछ और कैलकुलेशन नहीं करनी, सेम काइंड की कैलकुलेशन है सब कॉलम्स के लिए, तो आपको एक ही बार करना है और बाद में ड्रैग कर देना है। लेकिन सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन है, तो फिर आपको सबके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट जो है, हाँ, तो उसी का ये रिज़ल्ट है रिलेटिव का। ऊपर देखो फार्मूला बार में भी आप देख सकते हो, जो सिलेक्शन करोगे उन सेल्स के नाम विद फार्मूला आएगा। तो फार्मूला बार में इक्वल टू B9 इंटू C9 दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट जो है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में जो है आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में देखो यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है, कमीशन नवंबर, टोटल सेल्स,
कमीशन, बॉब का कमीशन बन रहा है 5200, सैली का बन रहा है 35350, और जोसेफ का 8400। तो कमीशन एक कॉलम है और टोटल सेल्स। तो कमीशन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? ऑन द बेसिस ऑफ सेल का जो अमाउंट है उसका 20%। नीचे देखो रेट लिखा हुआ है, उसमें रेट इक्वल टू 20%, है ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर टॉप में देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वल टू B10 इंटू $B$15। ओके, तो $B$15 का मतलब ये है कि ये डॉलर कहाँ लगाते हैं हम, जहाँ पे वैल्यू आपको चेंज नहीं करना है। तो सबके लिए $B$15 मीन्स आपको सबके लिए जो रेट है वो कितना परसेंट रहेगा, 20%। ओके, और B10 में जो है B10, B11, B12, 13, तो सबके लिए कॉमन रेट रहेगा 20%। तो जहाँ पे इस तरह के कैलकुलेशन होते हैं कि एक वैल्यूज़ को हम फिक्स कर देते हैं, चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला जब अप्लाई करोगे B10 इंटू बी $15 और एंटर प्रेस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5200। वैसे ही दूसरे नीचे वाले रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही ड्रैग करना पड़ेगा, और तो सबके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो सबका कमीशन निकल आएगा। ठीक है। तो जहाँ पे इस तरह का डॉलर मीन्स आपको रो कॉलम को नहीं चेंज करना है, वही वैल्यू रखनी है, तो डॉलर का यूज़ करना है बिफोर कॉलम नेम, बिफोर डॉलर यूज़ करना है, बिफोर रो नेम। ओके। तो मिक्स ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट जो टाइप है वो मिक्स्ड है। तो मिक्स में बोथ टाइप के रेफरेंस है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स है। तो ऐसा जो कैलकुलेशन है तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड रेफरेंसिंग, है ना। तो वहाँ पे डॉलर यूज़ कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चल जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरिंग डेटा, टेक्स्ट, नंबर, डेट इन सेल्स, है ना। तो सेल्स में आप क्या क्या डाल सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो, नंबर्स डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो। तो यहाँ एग्जांपल में डाल के दिखाई हुई है। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स डाले हैं, नेम डाले हुए हैं अमित, सुमित, दिशा। फिर डेट फॉर्मेट में डेट डाला हुआ है 1 2 2 1। अगर आप एक में डालेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपका मंथ चेंज होगा और डेट चेंज होगी और मंथ सेम रहेगा एंड ईयर सेम रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सेल्स के अंदर डाल सकते हो एज़ पर योर नीड, जो भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की या जिस है ना, जो भी कैलकुलेशन आप टेबल वगैरह बनाना चाहते हो। लाइक नाउ द फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स डेटा इन कैल्क सेल्स। फॉर्मेटिंग में वही हम फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे, कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, अंडरलाइन कर देना, इटैलिक कर देना, लाइक है ना, फ़ॉन्ट स्टाइल बदल देना, इंडेंट कर देना, लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। तो जो हमने वर्ड में देखा था ऑलमोस्ट वही है। तो ABC पब्लिकेशन मुंबई, तो ये वाला हमारा एक टेक्स्ट है, इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के लिए हम इसमें कलर चेंज कर रहे हैं, तो रेड कलर इसको कर देंगे, तो आपका टेक्स्ट रेड में हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फिर इटैलिक कर दिया इसको, तो इटैलिक में चेंज हो जाएगा।
ओके, ABC एक हमने सेल में एंट्री की है। टू डिलीट सिलेक्ट सेल एंड प्रेस डिलीट बटन। तो इसको डिलीट करना है ABC को, तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर लो सेल को, और बाद में डिलीट बटन प्रेस कर दो तो आपका डेटा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, इंसर्ट करना है तो सेल को सिलेक्ट कर लो और टाइप कर दो, कीबोर्ड से टाइप हो जाएगा। डेट आपको डालनी है तो सेल को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, इन 3 बटन को प्रेस करोगे तो वो जो सिस्टम पे जिस पे आप काम कर रहे हो उसका करंट डेट टाइम आपको शीट पे आ जाएगा, पर्टिकुलर सेल में एंटर हो जाएगा। तो ये प्रेस करने पे यहाँ पे टाइम आया है 2:08 22 PM। तो ये टाइम आपका इससे करंट टाइम सिस्टम का आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, आपको रो डिलीट करना है। तो रो डिलीट के लिए राइट क्लिक करना है रो नंबर के ऊपर, और वहाँ पे डिलीट रो ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दोगे तो आपकी रो जो है डिलीट हो जाएगी। आप पर्टिकुलर सेल पे राइट क्लिक करके भी डिलीट ऑप्शन प्रेस कर सकते हो, और डिलीट प्रेस करोगे तो डिलीट ऑल करके ऑप्शन आएगा, तो उसको ओके कर दोगे तो ये 2 सेल सिलेक्टेड है, इनका डेटा डिलीट हो जाएगा, ABCXYZ। तो सिलेक्शन आपको पहले करना पड़ेगा, माउस और माउस के बटन को प्रेस करके ड्रैग करना है जितना डेटा आपको सिलेक्ट करना है, या बैक बटन प्रेस करोगे तो भी आपको ये विंडो आएगी डिलीट ऑल। तो इसमें और भी है टेक्स्ट, डेट, टाइम, तो इनके डिफ़ॉल्ट तो डिलीट ऑल में सब आ जाएगा, इनको डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 रो में ABC और XYZ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका बैक बटन से भी आप डिलीट कर सकते हो, जो मैंने पहले बता दिया है ना। पेज फॉर्मेटिंग आपको करना है तो पेज में जाके फॉर्मेट में जाके पेज, पैराग्राफ वगैरह, पेज का सेटिंग, पेपर फॉर्मेट, A4 साइज़, विड्थ, हाइट, मार्जिन्स, है ना, जैसा हमने वर्ड में देखा था, तो वो इस कैल्क स्प्रेडशीट में भी कर सकते हो। ओके, तो बॉर्डर, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर सब इसमें दिया हुआ है, सब बदल सकते हो यहाँ से। ओके, प्रिंट करना है आपको डॉक्यूमेंट को तो फाइल में जाके प्रिंट कंट्रोल भी कर सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट डेटा आपने प्रिपेयर किया है उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो आपको जनरल टैब ओपन होगा, प्रीव्यू देख सकते हो कैसा प्रिंट आने वाला है, और उसमें सेटिंग प्रिंटर का सिलेक्शन कर सकते हो। ऑल पेजेस प्रिंट करना है कि पर्टिकुलर पेज करना है, इवन करना है, वर्ड पेज करना है, वो सब कर सकते हो। और लाइब्रेरी ऑफिस कैल्क में, ठीक है। उसके बाद में प्रिंटिंग है स्प्रेडशीट। ओके, तो ये यहाँ से सारे ऑप्शंस, आपको पोर्ट्रेट रखना है लैंडस्केप फॉर्मेट में, है ना, वर्टिकल प्रिंट आउट लेना है या हॉरिजेंटल लेना है, ये डिसाइड कर सकते हो। पेपर का साइज़ आप डिसाइड कर सकते हो, A4 साइज़ लेना है या ना। डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको सेव करना है तो फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट एज से भी कर सकते हो। तो आपको एक पॉपअप विंडो ओपन होगी सेव एज, उसमें उसका जो भी नाम आप डिसाइड करना चाहते हो डॉक्यूमेंट का नाम देके सेव कर सकते हो। उसके बाद में फाइल ओपन, तो ओपन पे जब क्लिक करोगे तो कंट्रोल हो, तो सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है किसी फाइल फोल्डर में, ड्राइव में आपका डॉक्यूमेंट, तो ओपन से ओपन कर सकते हो।
तो फाइल में जाना है आपको, कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ओपन विंडो ओपन होगा। सो यू हैव टू फाइंड द फोल्डर इन ड्राइव, कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, देन यू कैन सिलेक्ट। ओके, आपको हाउ टू एग्ज़िट है ना, क्लोज़ करना है तो राइट टॉप कॉर्नर में भी आपको क्लोज़ बटन दिया हुआ है, तो वहाँ से भी एप्लीकेशन को बंद कर सकते हो, या फाइल में एग्ज़िट लाइब्रेरी ऑफिस, कंट्रोल क्यू प्रेस करने पे भी आपका डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ काम करने में। नेक्स्ट, आपको डेटा को मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो सैम्पल डेटा लिया हुआ है, ऑर्डर डेट, रीज़न, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल। तो ये एक शीट बनाई हुई है, इसमें डिफरेंट डेटा हमने एंटर किया है। तो इसमें डेटा चेंजेस आप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो सिंपल आपको माउस कीबोर्ड का यूज़ करके कर सकते हो। नीचे देखो स्टेटस बार में सब दिया हुआ है, शीट कितनी है, कितने रोज़ सिलेक्टेड हैं, कितने कॉलम सिलेक्टेड हैं बॉटम में। ओके, कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एवरेज कितना आया है इन कॉलम्स का, सम कितना आ रहा है। ओके, तो सारी स्टेटस बार में आपको नीचे दिखाई देगा। देन नंबर फॉर्मेट, आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट में जाके नंबर फॉर्मेट में डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो। डॉलर में अगर आपको शो करना है डेटा को, 0.0 फॉर्मेट में, परसेंटेज फॉर्मेट में करना है, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक ई सिंबल का यूज़ करना है ना। तो ये सारी चीज़ें नंबर फॉर्मेट, कैसे आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है, डॉलर में, रुपीज़ में, टाइम या टाइम बताना है ना। तो अलग अलग नंबर फॉर्मेट से आप जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे जो रिपोर्ट है इसमें टोटल जो है वो या तो डॉलर में होगा, या इंडियन सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो रुपीज़ में डाल सकते। ठीक है, फॉर्मेट टेक्स्ट बोल्ड, तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है शीट के अंदर, तो जो जैसा वर्ड में हमने किया था, बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडर, डबल अंडरलाइन करना है, सिंगल, स्ट्राइक थ्रू करना है, बीच से कट करना है, ऊपर ओवरलाइन करना है, एक्स स्क्वायर इक्वेशन फॉर्म में शेडो बनाना है, अपर केस, लोअर केस, है ना, सेंटेंस केस, टोगल केस, मीन्स कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल करना है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो भी टेक्स्ट आपने शीट में लिया है उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। ओके, अलाइनमेंट आपको करना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट करनी है। वर्ड में जैसे एक्सप्लेन किया, अलाइनमेंट क्या होता है ना, पर्टिकुलर वे में, है ना, आपका पूरा टेक्स्ट जो है, हर लाइन का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ़्ट। ओके, तो वैसा अरेंजमेंट करना है। सेंटर्ड करना है, सारा टेक्स्ट आपको सेंटर्ड में दिखे या राइट में दिखे, तो अलग अलग राइट, सेंटर्ड, जस्टिफाइड, सारे ऑप्शन हैं। जस्टिफाइड में बोथ साइड से जो टेक्स्ट है वो इक्वल पोजीशन पे रहेगा। ओके, उसमें टेक्स्ट कम ज़्यादा अंदर बाहर नहीं होगा, है ना। टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, तो अलाइनमेंट ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। देन सेल्स को फॉर्मेट करना है आपको, सेल्स के साथ में कुछ चेंजेस करने हैं, तो सेल्स में जाना है। वहाँ पे देखो नंबर, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, सेल प्रोटेक्शन, वो सारे ऑप्शन है। तो सेल के साथ में एक पर्टिकुलर सेल या सिलेक्टेड सेल पे आप ऑपरेट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। उसमें आपको नंबर ही एंटर करवाना है,
या डेट टाइम एंटर करवाना है, फॉर्मेट उसका क्या रहेगा, लैंग्वेज कौन सी रहेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बदल सकते हो और फिर ओके प्रेस करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। फ़ॉन्ट बदलना है, स्टाइल बदलना है, साइज़ बदलना है फ़ॉन्ट का, तो वो ये सब चेंज करके ओके कर देना है। कलर, आपको बैकग्राउंड कलर बदलना है सेल का, तो एक्टिव सेल कलर स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप कर सकते हो, है ना। RGB कलर्स का नंबरिंग सेटिंग दिया है, तो नंबर के थ्रू भी आप कलर सिलेक्शन कर सकते हो, है ना। तो RGB कलर्स क्या होते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ RGB कलर से ही कोई नया कलर फॉर्म होता है, तो उसके कोड वर्ड्स हैं, हर सिस्टम में रहते हैं, तो उनके नंबर्स आप चूज़ करोगे तो आपका एक कलर कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा और वो कलर आप चूज़ कर सकते हो, और ओके प्रेस किया तो कलर ओके हो जाएगा। अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ओके, तो अलाइनमेंट के लिए क्या स्टेप्स है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, वर्टिक, आपको लेफ़्ट राइट कैसे रखना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया वही वाला है, तो यहाँ से भी जाके भी चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट। ओके, डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट सेंटर राइट, तो सेल के अंदर टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को भी कर सकते हो, सेल के अंदर भी अलाइनमेंट आप बदल सकते हो, सेंटर में रखना है, लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है ना। उसके बाद में कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना है पहले, उसके बाद में कट कॉपी करके किसी भी दूसरे सेल्स में पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो जैसे यहाँ देखो, तो कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो सिलेक्ट करना है आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को और राइट क्लिक करोगे तो कट ऑप्शन आएगा, कॉपी ऑप्शन आएगा और पेस्ट इस, तो पहले कट कर रहे हैं तो कट पे क्लिक किया, Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। ओके, फिर कट हो गया तो डेटा आपका वहाँ से कॉपी किया है हमने, तो वो डेटा वहीं पे एग्जिस्ट करेगा। और पेस्ट, तो नए कॉलम में हमने देखो पेस्ट किया कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट जो है यहाँ पे जॉन, वो वाला जो भी हमने कॉपी किया है ये आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, जॉन से लेके एंड्रयूस तक। ओके, इसमें पेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल पेस्ट है Ctrl+V, और दूसरा स्पेशल पेस्ट है। तो इसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे आप, तो जैसा उधर दिया है वैसा ही आपको इस तरह का विंडो ओपन होगा। इसमें आप कैरेक्टर सेट का जो कोडिंग है वो बदल सकते हो, लैंग्वेज बदल सकते हो, है ना, सेपरेटर ऑप्शंस बदल सकते हो, तो कैसा दिखेगा, और उसको ओके प्रेस करोगे तो इस तरीके का कोड आपका हो जाए। ठीक है, तो स्पेशल पेस्ट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, जो आपका सेल है या रो है उसका विड्थ और हाइट आपको बदलना है ना। जैसे अभी सब एक जैसी हाइट विड्थ दिख रही है, आपको हाइट बदलनी है तो फॉर्मेट में जाके रोज़ में जाके हाइट पे क्लिक करोगे तो कॉलम्स हाइट चेंज हो जाएगी वहाँ से, मीन्स कम ज़्यादा आप कर सकते हो। कॉलम्स में जाओगे, विड्थ बदलनी है कॉलम्स की, वाइड करना है, नैरो करना है, तो विड्थ पे क्लिक करना है तो कॉलम का जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगा। ओके, आप उसके बाद में आपको रो इंसर्ट करना है, तो रो पे जाके उसको राइट क्लिक करना है वहाँ पे, तो क्या होगा, सिलेक्शन करना है पहले वो रो नंबर को, तो इंसर्ट रो बिलो अबव
तो कुछ भी कर सकते हो, बिलो करना है तो बिलो, अबव करना है तो वो जो सिलेक्टेड रो है उसके ऊपर नीचे आप ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में शिफ्ट सेल डाउन, ठीक है, तो सेल को आपको अप डाउन करना है तो इंसर्ट सेल्स डाउन, तो पर्टिकुलर सेल पे राइट क्लिक करोगे और वहाँ पे से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो क्या आएगा, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, तो शिफ्टिंग उससे हो जाएगी। एंटायर रो आपको इंसर्ट करना है तो पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा। एंटायर कॉलम आपको इंसर्ट करना है तो जहाँ पे आपने सिलेक्शन किया है वहाँ से ये इफ़ेक्ट आएगा। ओके, तो ये सिलेक्ट डी कॉलम को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में डिलीट कॉलम्स, तो डिलीट कॉलम्स क्लिक करोगे तो आपका जो कॉलम है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, या उसके ऑप्शंस आपको दिखेंगे उसमें से पर्टिकुलर। तो कॉलम डिलीशन करना है आपको तो ये सिंपल आपको कॉलम के नाम पे राइट क्लिक करना है और आपको ऑप्शन डिलीट का वहाँ से शो हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर में। वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।